گل صاحب، تحریک انصاف سے میرا پہلا سوال ہے نومبر کے حوالے سے، جو کہ فائنل کال جس کی ہم بار بار پچھلے کئی دنوں سے بات بھی سن رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، تحریک انصاف کے دیگر رہنما وہ کہہ رہے ہیں جی اب فائنل کال ہوگی، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں اس لیے مینشن کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے بہت ایکسٹریم باتیں بھی کی تھیں اپنے کچھ خطابات میں کہ جی ہم سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے اور احتجاج اس حد تک کریں گے کہ جب تک ان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو فائنل کال ہے یہ ان کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر پائیں گے وہ اس میں؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی بھی فائنل کال نہیں ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی رہنما وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پوزیشن پہ نظر ثانی کرتے رہتے ہیں۔ یہی کام اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لوگ اس پہ اعتراض بھی شاید کریں، کہ پی ٹی آئی اس وقت دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک سڑکوں پہ احتجاج کی حامی ہے، دوسری پارلیمان کے اندر کام کرنے کی حامی ہے، اور اس کی جو لیڈ ہے وہ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے تو بڑا یقین سے کہا ہے کہ بڑا جلدی ان کو ہم رہا کروا لیں گے، اپنے عمران خان کو۔ تو اب کس بنیاد پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، کتنے ان کے تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے طفیل عمران خان اندر ہے اور جن کی وجہ سے عمران خان باہر آ سکتے ہیں، تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئے روز احتجاج کرنا، جلسے کرنا، یہ کوئی مثبت پالیسی نہیں ہے، کوئی اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ حاصل ہوگا تو اندرون خانہ ہی ہوگا، اور ان کی جو کے پی میں حکومت ہے، ان کی بہت بڑی پارلیمانی اکثریت ہے، آپ کی مرکزی قومی اسمبلی میں لاہور میں بہت بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کی۔ تو اگر ہوتا ہے تو اس بنیاد پہ ان کو ایک سوچنا چاہیے، ان بنیادوں پہ اپنے احتجاج کو استوار کریں۔ اب دیکھیے، لاہور اسموگ میں گھرا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ خصوصی جیٹ طیارے پہ جنیوا اور پھر لندن پہنچ گئیں، اور بیچارے اسکول کے بچوں کو اپنے باہر نکال دیا ڈیوٹی دینے کے لیے ان حالات میں۔ تو اصل میں نے تو پی ٹی آئی کی طرف سے کسی بھی رکن اسمبلی کا اس حوالے سے کوئی باقاعدہ کوئی کیمپین نہیں سنی کہ 3 4 5 دن وہ یہ مسئلہ اٹھا سکتے تھے شد و مت کے ساتھ۔ آپ کو اگر ٹیلی ویژن پہ جگہ نہیں ملتی تو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک پہ طوفان تو کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا۔ تو اس سے بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ لاہور کے، یعنی پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی ذمہ داری ہے اپوزیشن جماعت کے طور پہ کہ گورننس کی جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کی نشاندہی کریں، لوگوں کو آگہی دیں؟ یہی کام میں سمجھتا ہوں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کا ہے، لیکن وہاں سے بھی وہ مسنگ ان ایکشن ہیں، نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اصل میرا خیال ہے یہ ایریا ہے جہاں پہ ان کو توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آئے روز آپ احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے، مین سڑکوں پہ، موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ، کاروبار جو چھوٹے لوگوں کے ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کی دیہڑیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو پارٹی کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ حکمت عملی پی ٹی آئی کی بدنامی کا سبب زیادہ بن رہی ہے، اس سے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں اس قسم کے احتجاج کر کے، اب وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے، تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئے ہیں، لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے، وہاں پہ احتجاجی جلسہ کر کے آپ کو کیا حاصل ہونا ہے؟ جہاں سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہاں سے یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں یا اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور صاحب، ٹھیک ہے رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، آپ تمام رکاوٹیں عبور کر کے نہیں پہنچ سکتے، لیکن اصل میدان جنگ تو اسلام آباد اور پنجاب ہے۔ اگر وہاں کے ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے سرگرم نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اچھا گل صاحب، ابھی آپ نے خود بھی بات کی کہ جو کہ
तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉपुलर जमात है और उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हमें पता है कि तहरीक इंसाफ की एक बात तो है, अभी इस वक्त अवाम उनके साथ है, लेकिन दूसरी जानिब ये एक प्रोडक्टिव अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और उसको भी आपने अपने जवाब में मेंशन भी किया कि स्मॉग है, जो रियल इश्यूज़ हैं, जो अवामी मसाइल हैं, अगर इसको मौसर अंदाज में किया जाए तो शायद एक जो प्रेशर बिल्ड करने के हवाले से ये एहतजाज या जलसों की सूरत में करना चाहते हैं वो आप इन मौसर इक़दाम के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल मैटर्स हैं कि कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है, कोई इसको ओन कर रहा है, दूसरा उसको डिसओन कर रहा है। ये जो अंदरूनी चीज़ें हैं ये भी तो इनकी सारी जो तमाम तर सियासत है उस पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाहमी राब्ते जो हैं या अंडरस्टैंडिंग वो निस्बतन कम है, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर उनके दरमियान भी बाज़ औक़ात गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। और जिन लोगों ने इमरान खान को ज़िंदान में जमा कर रखा है तो उनका मकसद भी यही है कि पार्टी के अंदर इस तरह से इंतशार पैदा हो, यकसुई ना हो, और उससे जो मैसेजिंग है, जो सिग्नल्स हैं आम लोगों को जो मिलते हैं, ज़ाहिर है वो मनफी हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इशू पे काम करने की, बजाय इसके कि आप हर रोज़ कभी एक एहतजाज कभी दूसरा एहतजाज, क्योंकि पार्टी रहनुमा अक्सर पहले ही मुख्तलिफ़ केसों में कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, एक शहर से दूसरे शहर भाग दौड़ में मसरूफ़ रहते हैं। तो उन्हें फिर ये गैर मामूली गैर ज़रूरी इशूज़ पे बात करके खामखा अपने लिए मज़ीद मसाइल नहीं खड़े करने चाहिए। उसमें फिर मीडिया का भी हाथ है। वो मीडिया जिसके बारे में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ये बड़ा जाबिर मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने मतलब CNN, MSNBC वगैरह को, तो हमारे यहाँ भी आपको पता ही है CNN भी है, फॉक्स न्यूज़ भी है, काफ़ी सारे हैं। तो उनका भी इसमें एक बड़ा हाथ है। अखबारात का भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे है, तो हमारे भी एक दो ऐसे अखबार हैं कि उन्होंने अपना एक किरदार, अपना हिस्सा इसमें डाला हुआ है उस बयानी को तक़वियत देने में जो कि हुकूमत फैलाना चाहती है, जो कि हमारे मुक़्तदर हल्के जो हैं फैलाना चाहते हैं। तो कन्फ्यूजन उस वजह से भी पैदा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी आपने अमरीकी के हवाले से, अमेरिका के हवाले से बात भी की है, अब सवाबी में जलसा हुआ जी, किसी ने अमरीकी परचम लहरा दिया, उस पर हुकूमत ने एतराज़ात उठाए और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि जी हम इस पर एक्शन लेंगे, इस पर कार्रवाई होगी। ये जो हुआ है इस पर ज़रा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी गुल साहब। देखिए, किसी मुल्क का झंडा लहराना क्या पाकिस्तान में कोई काबिले दस्तंदाजी जुर्म है? सर वो अमेरिका का झंडा है ना, ये वाली बात है। नहीं, बेशक अमेरिका का हो, ठीक है। अगर भारत का झंडा किसी ने या अफगानिस्तान का झंडा इस किस्म की सूरत हाल में लहरा दिया तो उस पे तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका का झंडा लहराना अगर किसी ने किया है ज़ाती फ़ेल के तौर पे, तो उस पर आप क्या सज़ा देंगे? क्या कानून में कोई सज़ा उसके लिए लिखी है? दैट इज़ नंबर वन। और दूसरी बात उसमें यह है कि अगर किसी ने ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती जज्बे के तहत इस तरह का काम किया है तो उससे तो पहले पूछगछ होगी ना कि आपने किया क्यों है, क्या किसी के कहने पे किया है? तो जब तक इस बात का तयन नहीं होता है उस वक्त तक आप किसी को कैसे सज़ा दे सकते हैं? तो बुनियादी तौर पर झंडा लहराना किसी भी दोस्त मुल्क का कोई जुर्म नहीं है। उसको अगर बात का बतंगर आप बनाना चाहते हैं तो जिस तरह बनाया गया है 1.5 साल में बहुत सारी बातों का बतंगर, तो इसका भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फरूई मसलों पे हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा गुल साहब, एक तरफ तो ये हम एक झंडे की आपके मुताबिक ठीक है, हमारे कानून में अगर इसकी सज़ा नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी, एक पर्सनल उसकी चीज़ है। लेकिन दूसरी जानिब ये परसेप्शन था, आप चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है, मैं आपसे ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि आप प्री इलेक्शंस हो, अमेरिकन प्री इलेक्शंस डिस्कशंस हो या पोस्ट इलेक्शन हो, तो ये एक परसेप्शन था कि जी ट्रंप के आने से तहरीक इंसाफ की या ख़ास तौर पर बानी PTI को लेकर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और अमेरिका के आने से या प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से वो एक प्रेशर बिल्ड होगा। इस बात में किस हद तक सदाकत है? क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सदर नहीं बने, उसमें अभी
जनवरी, हाँ। 68-69, उसमें 68-69 दिन अभी बाकी हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा का अरसा अभी बाकी है। लिहाजा अगर किसी ने ये समझा था कि सिर्फ उसकी फतह का ऐलान होते ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात थी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हर रोज़ डोनाल्ड ट्रंप अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने फ्री मीडिया के हवाले से, उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से अपना एक मंसूबा परसों ऐलान किया था उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था, और वो एजेंडा है बुनियादी तौर पे बुनियादी इंसानी हुकूक का। यानी वो एजेंडा है जो कि इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी उठाया करती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको उठाया है, और उसका ताल्लुक है इजहार राय से, उसका ताल्लुक है बुनियादी जमहूरी हुकूक से, उसका ताल्लुक है कि किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अपने हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के दो नंबरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जाली बयानिए प्रमोट करते हैं किसी के कहने पे। ये ज़ाहिर है उनका इशारा अमरीकी ज़राए इब्लाग की तरफ है, लेकिन उसका इतलाक़ अगर आप पाकिस्तान में भी करें तो देखें किस तरह पार्टी एक PTI एक तरफ है, बाकी तमाम की तमाम ज़राए इब्लाग सियासी जमातें वो एक तरफ हैं, क्योंकि वो उसको PTI को अपना दुश्मन समझती हैं। अमेरिका में भी ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि गैर रिवायती सियासतदान है, अब आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन ये भी जहन में रखें कि 315 इलेक्टोरल कॉलेज वोट उसको मिले हैं, यानी वहाँ के अवाम की 52% लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया है, 52% लोगों ने। ठीक है, तो आखिर आप उनकी राय का तो कुछ तो एहतराम करेंगे। तो उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़, उन इदारों के ख़िलाफ़ जो कि निजी इदारों के साथ मिलके, निजी टेलीविज़न के साथ मिलके और झूठे बयानिए दे रहे हैं, वो लोग जो कि इंटेलिजेंस के हैं लेकिन उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में मुदाखलत की है, उसके ख़िलाफ़। तो आप थोड़ा सा जब अगर वो मंसूबा पढ़ें तो लगता है कि शायद वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे अगले शो में आपको उसकी मदद मिलेगी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अपने मुल्क में ये बुनियादी हुकूक हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत न करें, आप किसी का बग़ैर इतला के किसी के घर में ना घुसें, आप सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल करें मुखालफिन की जासूसी के लिए, आप मीडिया जो है उसको अपने मकासद के लिए सरकारी पैसों पे ना इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने कहा कि मैं तो आते ही पाबंदियां लगाऊंगा। तो अगर अपने मुल्क में वो ये कर रहे हैं, तो जब उनको वक्त मिलेगा महीने 2-3 महीने के बाद, सदर बनने के फ़ौरन बाद, तो मेरा उम्मीद ये है कि पाकिस्तान पे भी उनकी तवज्जो ज़रूर आएगी।